from a point to the line. So this distance is nothing but d. This is the given line. Now this line is not in standard format. So we will have to first convert it into standard form. That is general form of equation of a line. Ax plus by plus c equal to 0. So 12 ने multiply करना, it will become 12x plus 12 into 6. 12 6 the 72 is equal to 5y minus 10. Taking these two terms on left hand side, we will get what? 12x minus 5y and 72 plus this 10. So it is 82 equal to 0. So from this we get value of ABC. A is coefficient of x, B is coefficient of y, C is constant coefficient. Also this point P minus 1 1 is nothing but x1 y1. And then according to the formula, D is what? Mod of ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. So this is the formula. Now we have to put values of ABC from the line and value of x1 y1 from the point. It gives distance of a point from a line and it is always perpendicular distance. So this is equal to mod of ax1. A is 12. x1 is minus 1 plus by1. B is minus 5 into y1 is plus 1 plus c, which is 82, divided by under root a square 12 square, so it is 144, plus b square minus 5 square, so it is 25. This comes out to be minus 12 minus 5 plus 82 upon, this is under root 169, which is equal to, now 82 minus 17, 65 है ना, upon this is 13. So 13 5 are 65. So it is 5 mod of 5, which is nothing but 5 units. Okay, so this is question number 18 from miscellaneous exercise 5. Question number 20. And the question is, two lines passing through M23 intersect each other at an angle of 45 degree. So there are two lines passing through the point M23. Okay. So now if two lines are passing through a single point, it means it is a point of their intersection. It should be very much clear. Two lines cannot intersect in more than one point. Okay. So if two lines are intersecting each other, then meeting at a point, then it means it is nothing but their point of intersection. So let us say this is L1, this is L2. This is their point of intersection M, which is nothing but 2, 3. And they are making an angle of 45 degree. Okay? So this angle is of 45 degree. Next, what is given? If slope of one line is 2, slope of one line is 2. So let us say this line 1 has a slope m1, which is equal to 2. And we have to find slope of line 2, that is m2, is equal to how much? We have to find out m2. m1 is given as 2, passing through the point m. Angle between the lines is 45 degree. So first of all we need to find out m2, then we can find out the equation of the line 2. ठीक है, अगर हमें लाइन 2 का इक्वेशन ढूंढना है तो लाइन 2 के ऊपर एक पॉइंट हमें ऑलरेडी मालूम है. अब या तो हमें दूसरा पॉइंट मालूम हो या फिर स्लोप मालूम हो, और जो भी गिवन कंडीशन है, एंगल दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट m2 यूजिंग द फार्मूला एंगल बिटवीन लाइंस. ठीक है, acute angle between lines b theta. So formula is what?
tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Now here theta is given as 45 degree. So it is tan 45 degree equal to mod of m1. m1 is also given as 2 minus m2 upon 1 plus m1 is 2 into m2. Tan 45 degree is how much? It is 1 is equal to mod of 2 minus m2 upon 1 plus 2m2. ठीक है, अगर हम मॉड निकालते हैं तो हमें प्लस और माइनस साइन देना होता है. सो देयरफॉर 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1. मॉड निकाला तो आपको साइन देना होगा प्लस और माइनस. इसका मतलब दो इक्वेशंस बन जाएंगे अब यहाँ पर. 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू प्लस 1. और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इक्वल टू माइनस 1. अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, विल गेट वैल्यू ऑफ m2. तो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इट विल बिकम 1 प्लस 2m2. ठीक है, क्लियर. अब 2m2 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2m2 एंड दिस माइनस m2, सो इट इज माइनस 3m2 is equal to 1 and this is minus 2. 1 minus 2, so it is minus 1. So here we get minus minus cut हो जाएगा, m2 equal to 1 by 3 फर्स्ट केस में. m2 equal to 1 by 3. सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा? दिस इज 2 minus m2 is equal to, इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, so 1 into minus 1 is minus 1. 2m2 into minus 1, so it is minus 2m2. माइनस 2m2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2m2. सो 2m2 माइनस m2 इट इज m2 इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 1, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2. माइनस 1 माइनस 2 इट इज माइनस 3. आपको डायरेक्ट यहाँ पर m2 मिल गया. ठीक, इधर है m2 1 by 3, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ m2 इक्वल टू माइनस 3. ठीक, नाउ सी, अब दो आंसर्स हमें क्यों मिलेंगे? दो आंसर्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि या तो 45 डिग्री इधर होगा या तो 45 डिग्री इधर होगा, दोनों भी तरीके से. बेसिकली विल बी गेटिंग टू लाइंस और 45 डिग्री एंगल है, मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. सो दिस टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, जो भी लाइंस होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इनके स्लोप्स आप देखिए, दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. They are negative reciprocals of each other, passing through the point 2, 3, making an angle of 45 degree with one line. ठीक, अब हमने यहाँ पर दोनों स्लोप हो गए, तो मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं मिलेगा, दो इक्वेशंस मिलेंगे. पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, पॉइंट सेम रहेगा बट स्लोप इनके अलग अलग होंगे. सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू m2, 3 and having slope, पहले मैं ये वाला स्लोप लेता हूँ 1 by 3. So we'll be using which form? Slope point form. We'll be using slope point form. So obviously this is the value of m. This is x1, y1. What is the equation? Y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. So it is what? Y minus y1. y1 कितना है? 3. m, this is 1 by 3. x minus x1, it is 2. 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 9, 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2. 3y को उधर लेकर जाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3y, माइनस 9 भी उधर गया तो प्लस 9 माइनस 2, 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द वन लाइन. ठीक, अनदर लाइन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through M23 and having slope, अब कितना स्लोप है इसका, -3, having slope -3, so it is how much, अब यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा ये वाला, और दिस इज द वैल्यू ऑफ m, so it is y minus y1 equal to m in bracket x minus x1, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 is 2, so y minus 3 equal to -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3x plus 6, दोनों टर्म्स LHS पर लेकर आएंगे, so it will become 3x plus y plus 6 इधर आएगा तो हो जाएगा -6 and -3 it is -9 is equal to 0. So these are the two required lines. Exercise 5.4, question number 18. If ABC are the vertices of triangle ABC, so there are three vertices of triangle ABC whose coordinates are 4 3 0 0 and 2 3. So these are the vertices of triangle ABC. And what we have to find out here? We have to find out equation of bisector of angle BAC. So we have to find out equation of bisector of angle BAC. तो ये जो BAC एंगल है इसका बाइसेक्टर आपको निकालना है, ठीक. सो लेट अस से यहाँ पर पॉइंट हो गया D. सो लेट AD be the bisector of angle BAC. It means these two angles are equal. We have to find out equation of AD. अब अगर equation of AD आपको ढूंढना है तो this line AD contains the point A43 और it is passing through the point A43. एक चीज तो आपको ये चीज मालूम हो गई, ठीक. ये पॉइंट तो आपको लाइन के ऊपर का मालूम है. अब दूसरी चीज क्या मालूम होनी चाहिए, फिर अगर आपको एक पॉइंट मालूम है तो या तो आपको स्लोप मालूम होना चाहिए या तो फिर दूसरा पॉइंट मालूम होना चाहिए. एंड इन दिस केस नो रिलेशन इज गिवन बिटवीन द स्लोप्स. तो हमें दूसरा पॉइंट मतलब कि डी हम ढूंढ सकते हैं. तो यहाँ पर हम पॉइंट डी का इक्वेशन या फिर डी के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे और फिर एडी का इक्वेशन निकालेंगे. नाउ फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ or finding the coordinates of D, what we can use, this point D divides BC in the ratio AB is to AC, angle bisector property from 10, angle bisector property from 10. ये जो पॉइंट D है it divides the line BC internally in the ratio AB is to AC, ठीक. तो हमें AB और AC निकाल लेना होगा. so let us find out length AB by using distance formula. Now what is AB? AB is equal to under root 4 minus 0 bracket square plus 3 minus 0 bracket square. So it is nothing but under root 16 plus 9 which is equal to 5. So this is AB. Let us find out AC. AC is nothing but under root 4 minus 2 bracket square plus 3 minus 3 bracket square. So this is equal to how much? 4 minus 2, 2 square, it is 4, plus 0 which is equal to 2. So here it is 2. And therefore point D divides, point D divides BC internally in the ratio 5 is to 2. Just a second. Okay.
proportionally in the ratio 5:2. Now see, अब यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी. विल यूज व्हाट? इंटरनल डिवीजन फार्मूला. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n. ठीक है, ये m और n की वैल्यू हो गई. बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला, और क्या व्हाट यू कैन सी इन अनदर नेम फॉर दिस फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला. ठीक है, तो उस तरीके से अगर करते हैं, so this is the value of m, this is the value of n, this is x1 y1, this is x2 y2. So therefore d x comma y, मतलब d के कोऑर्डिनेट्स, they are what is the formula? mx2. ठीक, अब इस फार्मूला को ध्यान में कैसे रखना है? दो चीजें, एक तो इंटरनल डिवीजन, एक तो एक्सटर्नल डिवीजन. अगर एक्सटर्नल डिवीजन हुआ तो बीच में साइन माइनस आता है, इंटरनल डिवीजन हुआ तो बीच में साइन प्लस आता है. अच्छा, करना कैसे आपको? m x2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ध्यान में रखेंगे आप. m x2 n x1, इधर से इधर, इधर से इधर. ठीक, सो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. तो mx2, अभी x1 y1 हमने लिख दिया, x2 y2 लिख दिया. So this is nothing but mx2. So 5 into 2 plus nx1 2 into 0 divided by 5 plus 2. इधर होगा 5 into 3 plus 2 into 0 upon 5 plus 2. So this comes out to be 5 2s are 10 upon 7, 5 3s are 15 upon 7. So these are the coordinates of the point D. And then we can find out the equation of AD. Therefore, equation of AD, which is passing through 4 3 and 10 by 7, 15 by 7. So this is x1 y1, x2 y2. What is the equation of line passing through the 2 points? Y minus y1 upon y1 minus y2 equal to x minus x1 upon x1 minus x2. So this is nothing but y minus 3 upon 3 minus 15 by 7, x minus 4 upon 4 minus 10 by 7. क्लियर? न्यूमरेटर y माइनस 3. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं 7 एलसीएम लूंगा, इधर भी 7 एलसीएम लूंगा, दोनों एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे. इधर का डिनोमिनेटर और इधर भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब 7. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट विल बी गेट कैंसल. तो हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 15. इधर न्यूमरेटर एज इट इज, 7 4 जा 28 minus 10. So this is y minus 3 upon 6, x minus 4 upon 18. फिर हो जाता है आपका 6 3 जा 18. दिस इज 1 हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा x माइनस 4, इधर हो जाएगा 3y माइनस 9. दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y and this is 9 minus 4 which is 5. So this is the required equation of the angle bisector. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 20 इज ओ ए बी आर वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल. तो यहाँ पर 3 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है. दिस इज ओ ए
B. OK coordinately, obviously it is the origin 0 0. A is 6 0. B is 0 8. ठीक है, and we have to find out the coordinates of the in center of triangle OAB. We have to find out coordinates of in center of the triangle OAB. अब सबसे पहले तो ये समझे कि what is the in center. In center is nothing but point of intersection of angle bisectors. ठीक है, in center is nothing but point of intersection of angle bisectors of triangle. So in center is nothing but point of intersection of angle bisectors of the triangle. ठीक, तो मैं पहला एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे जैसे मैंने निकाल लिया, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको मैंने नाम दे दिया डी. तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ओडी. अब आपको ओडी का इक्वेशन निकालना होगा. किस तरीके से? जैसे हमने अभी सॉल्व किया, सेम मेथड से आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस निकालना होगा, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ओडी बाय अगेन सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. एक बार आपको ओडी का इक्वेशन मिल गया एंगल बाइसेक्टर का, देयर इज अनदर बाइसेक्टर. आप इस साइड से ले लीजिए या फिर इस साइड से ले लीजिए, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अगर मुझे तीनों बाइसेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ऑल द थ्री पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट. तो मैं दो निकालता हूं तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे बस उनका इंटरसेक्शन चाहिए. तो अगर मान लीजिए मैं इधर से लेता हूँ एंगल बाइसेक्टर, दिस इज अनदर एंगल बाइसेक्टर. ठीक, ये वाला भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, लेट इट बी AE. और तीसरा जो होगा यहां से आएगा, तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज इन सेंटर, व्हिच इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. जो पॉइंट E है, इट विल डिवाइड द लाइन OB, ठीक है, इन द रेशियो OA इज टू AB. यहाँ पर जो है OA आ जाएगा, यहाँ पर जो है AB आ जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन AE. फिर उन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको इन सेंटर मिल जाएगा. सो यू कैन ट्राई इट एट होम. कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा. First question of this: two sides of a rhombus are along the lines. Two sides of a rhombus are along the lines. So let us first draw the rhombus. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर शुड बी नोन. जैसे हमने देखा कि एंगल बाइसेक्टर्स जो है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इन सेंटर होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए. अब रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट देयर एंगल बिटवीन देम इज नॉट अ राइट एंगल, क्योंकि अगर राइट एंगल होता था तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ रेक्टेंगल. ठीक, चलिए, तो हमने रोम्बस निकाला. अब जो दोनों साइड्स आपको गिवन है, बोथ द साइड्स दे आर नॉट पैरेलल लाइंस. क्लियर, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस. इसका मतलब एक साइड ये होगी तो दूसरी ये हो सकती है, या फिर ये दो साइड हो सकती है, या फिर ये दो साइड हो सकते हैं, कोई भी. तो मान लीजिए फर्स्ट जो लाइन इट इज व्हाट, x माइनस वाई प्लस 1, लेट इट बी दिस लाइन is equal to 0. Another line is 7x minus y minus 5 equal to 0. 7x minus y minus 5 equal to 0. This is another line. और क्या गिवन है, if its diagonals intersect at -1 -2. अब जो डायगोनल्स है आपके इंटरसेक्ट करते हैं -1 -2 में, तो दिस पॉइंट इज -1 -2. क्वेश्चन क्या है, then which one of the following is the vertex of this rhombus? Which one of the following is the vertex of this rhombus? तो चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, हमें ढूंढना है वर्टेक्स. अब सबसे पहले तो ये वाला वर्टेक्स आपको मिल जाएगा इजीली बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस. ठीक है, अगर हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो विल गेट दिस वर्टेक्स. विल फाइंड आउट दिस वर्टेक्स फर्स्ट.
let us say this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. For point A, solving 1 and 2. This is equation 1, this is equation 2. 7x माइनस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है, तो हम क्या कर लेंगे 1 माइनस 2 कर लेते हैं, फिर 2 माइनस 1 कर लेते हैं. तो 2 माइनस 1 अगर हमने किया 2 माइनस 1, so 7x माइनस x, it is 6x, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई, so कट हो गया, -5 माइनस 1. So -5 minus 1, it is how much? -6, which is equal to 0. So it means 6x equal to 6, x equal to 1. फिर from first, x मतलब 1, -1 plus 1 equal to 0. ठीक, so it means minus y equal to -2. माइनस माइनस कट हो जाएगा, y is equal to 2. तो अब मुझे पॉइंट A मिल गया जो कि हो गया 1, 2. अब देखिए ये वर्टेक्स तो ये हो गया, ऑप्शंस में है क्या आपके पास? तो ऑप्शंस में ये वाला वर्टेक्स नहीं है, मतलब 1, 2 तो हमारा आंसर नहीं है. अब मेरे लिए बी सी डी ढूंढना जरूरी होगा, तीनों में से कोई भी एक. अब अगर हम इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 टू एक पॉइंट ए मालूम है, एक पॉइंट सी मालूम है, तो आप इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल सकते हैं. और अगर इक्वेशन ऑफ एसी निकालेंगे तो यू विल गेट बी, यू कैन गेट दीज टू वर्टाइसेस, बी और डी आपको मिलेगा. सी के लिए तो चलिए हम बाद में सोचेंगे क्या कर सकते हैं, बट डी और बी तो आपको मिल ही जाएगा. ठीक, so for finding equation of AC, equation of diagonal AC by which form by 2 point form, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स मालूम है उसके ऊपर के. एंड 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. So this comes out to क्या, इसको x1 y1 बोल लीजिए, this is x2 y2. So y minus y1, which is 2, upon y1 minus y2, it is minus 2. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2. x minus x1 मतलब 1 अपॉन x1 minus x2, so it is -1. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1. आंसर हुआ आपका 1 plus 1 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, so it is 2y minus 4. 2 plus 2 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x minus 4. ठीक है, -4 दोनों साइड से कट हो जाएगा, so we'll get what, 4x minus 2y equal to 0, मतलब कि 2x minus y equal to 0. So this is the equation of diagonal AC. लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह है क्या, इधर ऐसे एरो करके दे देता हूँ. दिस इज 2x minus y equal to 0. अब पॉइंट बी जो होगा, इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन BD, जिसका कि हमें अभी इक्वेशन मालूम नहीं है, बट AC का मालूम है आपको, इक्वेशन ऑफ AC आपको मालूम हो गया. ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC मालूम होगा, तो आप कौन सा पॉइंट अभी इसमें से ढूंढ सकते हैं? अभी भी हमारे लिए कोई भी ये पॉइंट बी और डी, दीज आर नथिंग बट डायगोनल. इस डायगोनल का हमें इक्वेशन चाहिए, मतलब कौन सा डायगोनल? BD. BD का हमें इक्वेशन चाहिएगा, तभी हम निकाल सकेंगे पॉइंट बी और पॉइंट डी. इससे नहीं निकल पाएगा. तो इक्वेशन ऑफ BD निकालने के लिए, नाउ दिस डायगोनल BD पासेस थ्रू द पॉइंट -1 -2. दूसरा पॉइंट आपको मालूम नहीं है, आपको निकालना है बी और डी. ठीक, लेकिन आप इसका स्लोप मालूम कर सकते हैं. रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
perpendicular to each other. So therefore slope of BD मतलब कि another diagonal BD is nothing but -1 upon slope of AC, negative reciprocals of each other. So which is nothing but -1 upon, अब slope of AC कितना होगा? slope of AC, slope of AC आपको मालूम है यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं. It is -a upon b. So it means -a means 2 upon b मतलब -1. So this comes out to be -1 into -1 plus 1 upon -2. ठीक, so it is -1/2 slope of BD. अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ BD. इक्वेशन ऑफ BD is y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. m कितना है? स्लोप आपको मालूम है, it is -1/2 and this line BD is passing through the point -1 -2. तो ये हो जाएगा x1 y1 इस इक्वेशन के लिए. तो हो जाएगा y माइनस y1 मतलब -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया. x माइनस x1 x माइनस -1 मतलब हो जाएगा +1. तो इधर मल्टीप्लाई हुआ सो इट इज 2y + 4 -1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ. दोनों टर्म्स इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x + 2y 4 + 1 that is 5 is equal to 0. So this is equation of another diagonal. ये वाला डायगोनल होगा कौन सा? x + 2y + 5 equal to 0. ठीक, अब पॉइंट बी जो होगा इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड AB. पॉइंट डी जो होगा इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड AD. ठीक, तो हम बी और डी दोनों में से ले सकते हैं. अगर आप इसको लेते हैं और फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन दैट इज BD एंड AB, BD एंड AB, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इट विल बी पॉइंट बी. ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंट बी जो कि एक वर्टेक्स होगा रोम्बस का. तो हमें चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा होगा. अब इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड AB, BD कहाँ पर है? दिस इज BD, मतलब कि इक्वेशन हमने अगर 1 और 2 लिया है तो लेट अस से ये जो डायगोनल आया था इसको हमने बोल दिया थर्ड एंड दिस इज डायगोनल सेकंड डायगोनल व्हिच इज इक्वेशन 4. तो BD और AB सॉल्व करना है मुझे. तो AB कौन सा है आपका? AB इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 4. मतलब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 एंड 4. 1 देखिए x माइनस वाई है, यहाँ पर x + 2y है तो इधर भी x है इधर भी x है. मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 1 - 4 भी कर सकते हैं या फिर 4 - 1 भी कर सकते हैं. तो x माइनस x कट हो गया, -y - 2y सो इट इज -3y. 1 - 5 so it is -4 equal to 0. So this implies what? 3y is equal to -4, y is equal to -4/3. अब आप यहीं पर चेक कर लीजिए क्या किसी ऑप्शन में y की वैल्यू -4/3 है? तो नहीं है. आप चारों ऑप्शंस अगर देखेंगे तो y की वैल्यू -4/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है. मतलब हमारे लिए वर्टेक्स बी ऑप्शंस में नहीं है. ठीक, तो फिर हम ऑप्शन कौन सा ढूंढेंगे? वर्टेक्स डी ढूंढते हैं. तो इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड अभी ये हो जाएगा AD which is nothing but point D. We are trying to find out this vertex now. और इसके लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करना होगा सेकंड और ये वाला मतलब फोर्थ. तो सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड में क्या है? 7x - y
यहाँ पर है x प्लस 2y, तो कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को 2 को। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14x, और इसमें से माइनस करना है मुझे इक्वेशन 4, माइनस करना है इक्वेशन 4। तो 7 टू जा कितना हो गया 14x, एंड दिस इज माइनस नहीं प्लस करना होगा, माइनस से यहाँ पर प्लस है, प्लस कर लेते हैं, प्लस करना होगा। दिस 7 टू जा 14x एंड प्लस x, इट इज 15x। नेक्स्ट दिस इज माइनस 2y प्लस 2y, ये कट हो गया, ये हो जाएगा -10, ठीक है, -10 एंड +5, so it is -5 which is equal to 0, so 15x equal to 5, x equal to 1/3। अब ये किसी ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी कैन बी 1 वर्टेक्स, दैट इज पॉइंट डी, क्योंकि x की वैल्यू 1/3 है, लेकिन फिर भी आपको श्योर करना होगा x 1/3 है तो d, क्योंकि कभी कभी नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक। तो हमने एक मतलब एक ही कोऑर्डिनेट निकाल के आप आंसर फ्रीज नहीं करेंगे, अगर नन ऑफ दिस हुआ तो फिर आपको y निकालना पड़ेगा। इस केस में चारों ऑप्शंस में पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्टली ऑप्शन सी लिख सकते हैं। बट अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दिस हुआ तो आपको y भी निकालना होगा और कंफर्म करना होगा। y कैसे निकालेंगे आप? इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस इक्वेशन 4, क्योंकि हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं 2 और 4 सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 2 में नेगेटिव साइन उसे रहने दीजिए, 4 सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम 4 यू कैन फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट, फ्रॉम 4 x प्लस 2y, x मतलब 1/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, उधर चला जाएगा, हो जाएगा -5। सो जगह जगह चलिए इधर सॉल्व करता हूँ, मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, x प्लस 2y मतलब 1/3 प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, फ्रॉम इक्वेशन 4 x plus 2y plus 5, ठीक। so this becomes what 2y equal to -5 minus 1/3, so 2y equal to -5 to the 15 plus 1, 16/3, so y is equal to -8/3, and this option matches with option C, ठीक है। तो JEE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्ट सारे बेसिक्स है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, लेंथी है थोड़ा सा। कंसेप्ट अगर सिंपल रहेंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, कंसेप्ट अगर कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ कम होगी, लेकिन कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स होंगे, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक। सो इज देयर एनी डाउट? Question is, let k be an integer such that the triangle with vertices has area of 28 square units। vertices कौन से इसके? k -3 के, k -3 के, another vertex is 5k, and third vertex is -k2, and the area is given to be 28 square unit, then the orthocenter of this triangle, ठीक है। इसका हमें ढूंढना है ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर मतलब क्या होता है उससे पहले समझिए। ऑर्थोसेंटर इट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, देन इट इज ऑर्थोसेंटर। अब अल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको पहले तो क्या मालूम होना चाहिए? वर्टाइसेस मालूम होने चाहिए। वर्टाइसेस तो डायरेक्टली दिए नहीं उन्होंने, बट एरिया दिया हुआ है। सो एरिया is given to be 28. What is the formula for area? Half into determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So it is k minus 3k 1. फिर इधर 5 k 1, फिर इधर minus k
2 1 and this is equal to 28. ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 1 1 1 है तो आप जीरो मतलब डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए 1 माइनस 1 करके। बट अगर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज नहीं करना है तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि k माइनस के कितना हो जाएगा 0। तो मैं कर लेता हूँ R1 प्लस R2। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज नहीं करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। ठीक, 1/2 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट k माइनस के, सो इट इज 0, माइनस 3k प्लस 2, 1 प्लस 1 इट इज 2, 5k1 माइनस k2 1, R1 प्लस R3 किया हमने, R1 प्लस R3 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 56। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 0 है, फिर होता है माइनस, ब्रैकेट में आएगा माइनस 3k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 5 इंटू 1, 5 माइनस माइनस के इंटू 1, सो इट इज माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, प्लस नंबर लास्ट वाला 2, ब्रैकेट में क्या होगा 5 इंटू 2 10 माइनस दिस इज माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर which is equal to 56. Let us simplify this. So माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3k 5, so it is minus 15k, this is minus 3k square, 2 into 5 it is 10, 2 into k it is 2k, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20 प्लस 2k स्क्वायर इक्वल टू 56। अब माइनस साइन ब्रैकेट को अप्लाई होगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस, या फिर पहले माइनस 3k स्क्वायर, माइनस साइन अप्लाई होकर के हो जाएगा 3k स्क्वायर, माइनस 15k प्लस 2k, माइनस 15k प्लस 2k इट इज माइनस 13k, और ये वाला माइनस हो गया प्लस 13k, प्लस 10 है, ये हो जाएगा माइनस 10, प्लस 20 प्लस 2k स्क्वायर, 56 भी इधर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर देखिए एरिया है तो हमें प्लस और माइनस लेना होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में के क्या आंसर, तो एरिया हमें प्लस और माइनस लेना होगा, एवरीवेयर इट इज प्लस और माइनस। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दिस इज इक्वल टू 56 प्लस और माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो गया, 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इट इज 5k स्क्वायर, देन 13k and 20 minus 10 it is 10 प्लस और माइनस 56। तो एक बार हम लेते हैं प्लस 56, एक बार लेते हैं माइनस 56। ठीक, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो गए, दोनों सॉल्व करेंगे। 5k स्क्वायर प्लस 13k 10 माइनस 56, so it is minus 46 is equal to 0। इधर हो जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 13k, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में फैक्टर किसके निकालने होंगे, 5 इंटू माइनस 46, जिनकी सम होनी चाहिए प्लस 13। 5 इंटू माइनस 46 के फैक्टर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज माइनस 10 इंटू 23, so 23 और माइनस 10 can be the factor। 23 minus 10 it is how much, it is 13, and 23 into minus 10 will become like this, 5 into minus 46। तो फैक्टर हो जाएंगे 5k स्क्वायर प्लस 23k
-10k -46 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? ओनली के। ब्रैकेट में होगा 5k + 23। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा -2 5k + 23। एक फैक्टर हो गया 5k + 23, दूसरा हुआ k -2 इज इक्वल टू 0। So either 5k plus 23 equal to 0 or k minus 2 equal to 0. So k is equal to 2 over here, and this is 5k equal to -23, k equal to -23 by 5। अब इसी चीज के लिए गिवन में क्या है देखिए, गिवन इज k is an integer। k इंटीजर है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि k इज एन इंटीजर, तो ये आपकी ओमिट हो जाएगी, ये आंसर रहेगा। ठीक, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा इक्वेशन भी है, इसे भी आपको चेक करना होगा। अगर इसे हम चेक करते हैं तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा 5 × 66, इन दोनों का। इसके फैक्टर्स की सम होनी चाहिए 13। फैक्टर की सम कितनी होनी चाहिए? 13। अब 5 × 60 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो 5 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 11 × 6, मतलब कि 5 × 11 × 3 × 2। अब आप किसी भी तरीके से करेंगे तो इसके आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, फैक्टर्स मिलने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। यहाँ पर साइन कौन सा है? प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पॉजिटिव होना, मतलब दोनों भी नंबर या तो पॉजिटिव होना है तो दोनों नंबर नेगेटिव होना। इस केस में आप फैक्टर्स निकालेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। देन यू विल बी यूजिंग फार्मूला मेथड। अगर आप फार्मूला मेथड से जाते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज √b² - 4ac, so it comes out to be √13² - 4 × a × c, and this comes out to be √negative, so not real value for this, there is no real value for this। ये 169 होगा और ये 169 के बड़ा ही नंबर है, 6 5 300 400, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा इट विल बी माइनस, तो अंडर रूट में माइनस साइन आएगा, मतलब नो रियल रूट्स। ठीक, तो हमारे लिए k की वैल्यू क्या हो गई? फिर k इज इक्वल टू 2। तो अब मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में मैं यहाँ पर k की वैल्यू डाल करके मुझे तीनों वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो ट्रायंगल अब इस तरीके से बनेगा। अभी तक हमने क्या किया? खाली इतना सारा करके आपको वैल्यू मिली है, वैल्यू ऑफ k ओनली, व्हिच इज इंटीजर वैल्यू 2, k -3k। सो दिस इज व्हाट 2, के लिए नाम दे देते हैं a b c, k -3k, सो 2 - 3 × 2, दैट इज 6। दूसरा b है 5, k, सो इट इज 5, 2। तीसरा वर्टेक्स है -k2, so it is -2t, and we have to find out what? Orthocenter, and orthocenter is nothing but intersection of altitudes of the triangle। ठीक, altitude मतलब हाइट, यहाँ से आप डाल सकते हैं, so this is one height, और एक दूसरा हाइट आप ले सकते हैं पॉइंट ए से। मान लीजिए आपने पॉइंट ए से हाइट लिया, किसी भी दो, कोई भी दो अल्टीट्यूड्स आप ले सकते हैं, दिस इज वन, दिस इज अनदर, ये भी परपेंडिकुलर है, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा इट विल बी नथिंग बट ऑर्थोसेंटर। ठीक, अब यहाँ तक आने के बाद हमने k की वैल्यू निकाली, हमने वर्टेक्स लिख दिए, वर्टेक्स लिखने के बाद हमने यहाँ पर देख लिया दिस इज ऑर्थोसेंटर, व्हिच इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स अगर है तो आपको इसका इक्वेशन निकालना होगा। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया लेट अस से B, या फिर दिस इज D एंड दिस इज E।
दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। इंटरसेक्शन चाहिए आपको, तो इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों के इक्वेशन निकालने के लिए ऑलरेडी आपके पास पॉइंट्स तो है, मतलब जैसे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको ढूंढना होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ढूंढना होगा, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते, ये एक पॉइंट है, इस लाइन का स्लोप निकालिए एडी का। नाउ सिंस एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, आपको एडी का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, आपको बीई का भी स्लोप मिल जाएगा। तो हमें उस तरीके से स्लोप निकालना है। सबसे पहले हम बीसी का स्लोप देखते हैं। स्लोप ऑफ बीसी। अब बीसी जो लाइन है इसका मतलब आप स्लोप से भी जा सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, x वेरी हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट सेम है। इट मीन दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू अगर 2 लाइन है, इट मीन्स इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो लाइन AD होगी इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक। उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो BC is parallel to x-axis and therefore AD is parallel to y-axis. BC is parallel to x-axis, AD is parallel to y-axis हो जाएगा। BC parallel to x-axis क्यों है मैंने बताया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, x वेरी हो रहा है। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब BC का इक्वेशन क्या हो गया, y is equal to 2 and this line is always parallel to x-axis. So it means AD is parallel to y-axis. तो AD का इक्वेशन क्या होगा, x is equal to h के फॉर्म में होगा। और जो लाइन AD है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 6, ठीक है। AD is passing through the point 2 - 6, तो x is equal to h, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x is equal to 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ AD। नहीं तो आप स्लोप से निकालिए, स्लोप से भी निकालेंगे तो फिर इनफाइनाइट स्लोप आएगा, फिर अगेन आप वहीं पर जाएंगे, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो इक्वेशन ऑफ एडी हो गया इट इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 2। अब मेरे लिए ढूंढना है बीई का इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट बनता है क्या, नहीं। अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कोई भी शॉर्टकट नहीं बनता है। तो मुझे ए सी का स्लोप पहले निकालना होगा। तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y1 - y2, सो -6 - 2, -6 - 2 अपॉन x1 - x2, सो 2 -+ 2, so it comes out to be -8 upon 4, that is -2। ये किसका स्लोप हुआ, AC का। तो जो BE है इट इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। BE परपेंडिकुलर टू AC, तो स्लोप ऑफ BE क्या होगा फिर, स्लोप ऑफ BE इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, इट इज 1/2। अब मुझे कुछ मिटाना होगा तभी, क्योंकि बहुत जगह यूज कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, पूछ लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम लेंगे इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई, y - y1 m in bracket x - x1, so y माइनस, अब जो लाइन BE है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट B, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है, BE इज पासिंग थ्रू द पॉइंट B। तो ये हो गया आपका x1 y1, y1 कितना है 2, x1 5, तो y1 मतलब 2। अच्छा, B का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ B इट इज 1/2 इन ब्रैकेट x - x1 दैट इज 5। इसे सॉल्व करेंगे, which is 2y - 4 equal to x - 5, so it means x - 2y और -5
प्लस 4 इट इज -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन हुआ x इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of BE and AD. So solving BE and AD, अगर मान लीजिए इसे मैं बोलता हूं एक नंबर, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, तो x का आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस y का आंसर ढूंढना है। तो x मतलब कितना, 2 माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हुआ, उधर जाके -1 हो गया, माइनस माइनस कट हुआ, y इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर जो है इट इज x मतलब 2, y मतलब 1/2। क्वेश्चन थर्ड, a straight line through a fixed point 2 3 intersect the coordinate axis at distinct points p and q. So there is a straight line passing through a fixed point 2 3। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब 2 3 पॉइंट है वो, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। So let us say this is point 1 2, 1 2 3, let us say this point is 2 3। तो यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। So this is a line passing through the point 2 3 intersect the coordinate axis at p and q। मान लीजिए इसको इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट p पे और इसे इंटरसेक्ट करेंगे q पर। If O is the origin and the rectangle ORPQ is completed, rectangle ORPQ is completed, तो ORPQ कहाँ पर होगा, रेक्टेंगल बोला है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट R, this is point R, and we have to find out what, then the locus of R is, we have to find out locus of this point R, we have to find out locus of this point R. Now see, there will be different lines passing through this point 2 3 and making intersect P and Q। अलग अलग लाइन्स होंगे, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन ये भी हो सकती है इस तरीके से, एक लाइन दूसरी और इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। सो देयर में बी डिफरेंट लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2 3 मेकिंग इंटरसेक्ट P ऑन x एक्सिस, Q ऑन y एक्सिस। देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि हर केस में आपका R जो है इट विल वेरी, क्योंकि अगर यहाँ पर होगा तो R ऊपर चला जाएगा, फिर इधर होगा तो R और ऊपर चला जाएगा, ठीक, इन दिस वे। सो हैव टू फाइंड आउट, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट नाउ, R इज अ वेरिएबल पॉइंट जिसका लोकस हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए अब इस R को हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, लेट अस से h, k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो जो पॉइंट P होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट P के x तो हो जाएगा h और y हो जाएगा 0। पॉइंट Q के लिए x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू होगी k, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ line PQ is, equation of line PQ is, now PQ line is making x intercept h, y intercept k, ये हो जाएगा x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल टू 1। ठीक है, now since
दिस लाइन पासेस थ्रू, अब ये कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? इट इज पासिंग थ्रू 2 3। सो x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, y की वैल्यू 3 ले सकते हैं। x इज 2 अपॉन एच प्लस y, y मतलब कितना है 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन PQ एंड वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन h एंड k। अगर हमें इसका लोकस ढूंढना है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट r, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन h एंड k व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। देखिए मैंने लाइन PQ का इक्वेशन लिख दिया, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। मतलब कौन सा फॉर्म? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये जो लाइन है PQ, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। इट मींस पॉइंट 2 3 satisfies the equation of this line, so we can put x is equal to 2। तो अब जो लोकस ऑफ r होगा, इट विल बी नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन h एंड k, दैट इज रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r। इट इज द लोकस ऑफ r, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r, दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट r। ठीक, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r क्या है? h के। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया h और k में। टेकिंग एलसीएम एज h के, ये क्या हो जाएगा? 2k प्लस 3h इक्वल टू एच के। हमने एलसीएम ले लिया एच के, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k प्लस 3h इक्वल टू एच के इंटू 1, दैट इज एच के। ठीक, सो दिस इज लोकस ऑफ r, but it is in terms of coordinates of r। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या लेते हैं हम? टेकिंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y। कोऑर्डिनेट्स हम x और y लेते हैं, तो 2k इट मींस इट इज 2y प्लस 3x इक्वल टू xy। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम हमेशा x और y के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे इसे x और y के फॉर्म में लिख दिया। सो इट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू xy, सो दैट इज योर आंसर। ठीक, लेट अस टेक फोर्थ क्वेश्चन।
ABC are vertices of triangle ABC and measurement of angle B is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 8 माइनस 3 4, 5 8 माइनस 3 4 और तीसरा है 7K, 7K and then we have to find out the value of K। ठीक है, इस केस में हमें K की वैल्यू ढूंढनी है। Now since this is a right angle triangle, it means what? AB is parallel to BC। ठीक है, अब sorry, AB is perpendicular to BC। AB and BC both are perpendicular। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। m1 into m2 equal to -1 for perpendicular lines। अब स्लोप ऑफ AB कितना होगा? स्लोप ऑफ AB y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2। ठीक है, तो 8 minus 4 अपॉन 5 minus minus plus 3 into, अब स्लोप ऑफ BC k minus 4 अपॉन 7 minus minus plus 3 इट इज इक्वल टू -1। तो 8 minus 4 हो गया 4 अपॉन 5 plus 3 8 into k minus 4 अपॉन 7 plus 3 10 इज इक्वल टू -1। अभी से हम सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, so it means k minus 4 equal to 2 10 जा 20, -20 हो गया, k is equal to हो गया +4 हो जाएगा -16।